ईयर है हमारे पास फेब मार्च 2022। आज हम इसका केस 1 करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम केस 2 करेंगे। स्कैनिंग करते हैं इसकी। हाँ, P2 वेरिएंट 2 रेहाना रिसाइकल्स के नाम से केस है। रेहाना इज वेरी इन्वायरमेंटली अवेयर। इन्वायरमेंटली अवेयर यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर काम कर रही है। 1 year ago, Rihanna identified a business opportunity to reuse waste products and set up Rihanna Recycles as a sole trader. Business क्या है? Sole trader है और Rihanna Recycles यानी कुछ इस तरह की कंपनी है। A local company sells bottled drinks and reuses the empty glass bottles that are returned by customers. यानी ड्रिंक्स बेचती है बॉटल्स के अंदर और वापस उनसे वो बॉटल्स परचेज कर लेती है और उनको वापस इस्तेमाल करती है। जो डैमेज होती है वो तो इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनको डंप कर दिया जाता है। Rihanna asked this company if she could have the damaged glass bottles. The company agreed that she could have them at no cost. कंपनी की तो किसी काम की नहीं है वो डैमेज बॉटल्स, तो रिहाना वो बॉटल्स फ्री में उनसे ले लेती है। अब वो तो जानी थी सीधा क्या लैंडफिल में जानी थी, लेकिन अब उसको इस्तेमाल कर रही है। कैसे कर रही है? RR melts down the glass and makes unique vases and other glassware products. RR's mission statement is make base beautiful. ठीक है, Rihanna markets her product as lovely for the planet. ठीक है, ब्रांड इमेज क्या बना रही है? दैट वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है। लवली फॉर यू, द बिजनेस हैज अ स्ट्रांग लोकल ब्रांड इमेज। Rihanna has recently invested in marketing which focuses on her unique selling point of recycling waste. USP क्या है कि वेस्ट रिसाइकल हो रहा है। To help business to help satisfy demand, Rihanna recently employed two local artists who are also very environmentally aware. They are skilled in making handmade glass jewelry. RR currently makes handmade products using job production. कौन सी बात हो रही है? जॉब प्रोडक्शन। अच्छा, ये तो अभी हम स्कैन कर रहे हैं। अब जो मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा था ना, एक बात याद रखना कि पेपर 2 के अंदर फाइनेंस भर के आएगा और HR आएगा। यूनिट 5 का फाइनेंस और यूनिट 2 का HR, ये ध्यान रखना बिल्कुल। Rihanna has a democratic leadership style और डेटा में फाइनेंस का ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो यहाँ पर भी फाइनेंस का डेटा दिया हुआ है, which means somewhat इस तरह की कोई केस स्टडी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। As demand has grown, Rihanna has needed to increase output. Rihanna has identified 2 ways of increasing output. एक क्या कर सकती है? Keep using job production and employ more artists to create unique glassware products using the RR brand. और आर्टिस्ट ले आओ और आउटपुट बढ़ा दो। दूसरा क्या? बैच प्रोडक्शन में आ जाओ। क्या आ जाओ? बैच प्रोडक्शन में आ जाओ, तो एक साथ है ना क्वांटिटी में आइटम बनेगा। तो पहला सवाल है, हम बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल लिखना स्टार्ट करते हैं। डिफाइन द टर्म मिशन स्टेटमेंट। सवाल क्या है हमारे पास? डिफाइन द टर्म मिशन स्टेटमेंट। तो लिखते हैं इसका आंसर, इट इज अ जेनेरिक फ्रेज। लिख लो यूसुफ तमनी। इट इज अ जेनेरिक फ्रेज। It is a generic phrase which tells about the organizational aims, which tells about the organizational aims. It is a generic phrase which tells about the organizational aims and gives direction to the business while stimulating interest of the internal and external stakeholders in the business activity. Internal and external stakeholders in the business activity. तो यहाँ पर 2 मार्क कंप्लीट हो गया। अगला सवाल है 3 मार्क के लिए। एक्सप्लेन द टर्म डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। एक्सप्लेन द टर्म डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लिखते हैं इसका आंसर। 3 मार्क में बताता हूं, केस से लिंक आ जाएगा। इट इज अ लीडरशिप स्टाइल
It is a leadership style in which there is two-way communication. It is a leadership style in which there is two-way communication and coordination while the workers are involved in the decision making process. While the workers are involved in the decision making process. As Rihanna using the style may coordinate with the artist for choosing the right design. यहां पर हमारे 3 मार्क कंप्लीट हुए। अगला मुझसे मांग रहा है कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशो। क्या मांग रहा है? कैलकुलेट द एसिड टेस्ट रेशो। ठीक है, तो एसिड टेस्ट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जरा जल्दी से फॉर्मूला लिखो अपने पास। करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो जल्दी से। बिल्कुल 1 मार्क होता है फॉर्मूला लिखने का। करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो जरा निकालना है, हम ऊपर जाके देख लेते हैं। करंट एसेट्स तो हमारे पास ये आ गए 14,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा 12,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है हमारी 8,000। तो बेटा दिए मैंने टोटल करंट एसेट्स 14,000। हाँ 14 माइनस 12 डिवाइड बाय 8, 14 माइनस 12 अपॉन 8। तो ये हो गया आपका कितना? ये बेटा ये टोटल है, ये टोटल ही गलती मत करना, ऐड ऑलरेडी किया हुआ है, बता रहा हूँ बेटा। बेटा बैलेंस शीट के अंदर कौन सी इन्वेंट्री दी हुई होती है? थोड़ा तो ध्यान रखो ना बेटा। 2/8। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? इसको सिंपलीफाई कर दो। नहीं बेटा 1/4 आ रहा है, 0.25 रेशियो 1, विच मीन्स हमारे हालात अच्छे। हम लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर है। हम किधर है? हम लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर। पहले अभी 0.25 रेशियो 1 लिखो, फिर आगे बात करते हैं। 0.25 रेशियो 1। सर आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है भाई। मैं पूछ रहा हूँ जो 12,000 था वो क्लोजिंग था ना? बिल्कुल, हमेशा बैलेंस शीट में क्लोजिंग लिखा हुआ होता है ना बेटा। जी बिल्कुल। अब पूछ रहा है एक्सप्लेन अब है ना पार्ट बी में आ रहा है। एक्सप्लेन वन मेथड। हाँ बस 0.25 रेशियो 1 लिखा, 3 मार्क आपके होगा। अब बोल रहा है एक्सप्लेन वन मेथड रिहाना में यूज टू इंप्रूव लिक्विडिटी। तो मुझे एक बात नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा पैसा मेरा कहां फंसा हुआ है? इन्वेंट्री के अंदर। किधर फंसा हुआ है? एक्सप्लेन वन वे रिहाना में यूज टू इंप्रूव लिक्विडिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पैसा कहां फंसा हुआ है? हमारा इन्वेंट्री के अंदर। तो लिखते हैं रिहाना कैन ऑफर sales promotion on the glass vases VASSES on the glass vases which may attract more customers
enabling the business to quickly sell inventory, which may reduce the capital stuck in the business and improve the liquidity also. She may reduce the output also. She may reduce the output once the inventory has been sold. So a great amount is not stuck in the business. अब इसका पार्ट सी बोल रहा है, एनालाइज टू बेनिफिट्स ऑफ फॉर आरआर ऑफ हैविंग अ यूनिक सेलिंग पॉइंट। बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले तो हम इसको बताएंगे यूनिक सेलिंग पॉइंट होता क्या है। लिखते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट is something which differentiates a product or service from its competitors. Unique selling point is something which differentiates a product or service from its competitors, as in case of RR, the USP is environmentally friendly products. Full stop. अगला पैराग्राफ। अब दो बेनिफिट्स बोले, एक बेनिफिट आएगा। The benefit of having a USP to RR would be that it may enable the business to stand out and have a strong brand image as mentioned in the case which may enable the business to charge premium prices which may result in greater profits। ये एक हो गया। अब अगला पैराग्राफ, अगला बेनिफिट।
The other benefit to RR would be that the USP may create a brand perception in the market due to which the consumers will have a greater trust in the business also when the consumers will have confidence in the business, there will be greater consumer loyalty. There will be greater consumer loyalty. There will be greater consumer loyalty, and the business may become successful in getting a greater market share. ठीक है, तो यहाँ पर आपके 2 पॉइंट्स। जॉब प्रोडक्शन की बात ही नहीं करी मैंने। हाँ, जॉब प्रोडक्शन बताया कि ये आरआर जो है तो ये उससे डिजाइनर आर्टिस्ट से करता हूं, उनका डिजाइन अच्छा है, तो आर्टिस्ट को बताया, कंज्यूमर को बताएगा ना कि जॉब प्रोडक्शन में क्या चाहिए उसको। वो तो मैंने एक डेमोक्रेटिक की अप्रोच दी ना कि आपस में जब कोऑर्डिनेशन होती होगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो आपस में कंसल्ट करते होंगे कौन से डिजाइन बनाने, कौन से डिजाइन नहीं बनाने, तो मिलके डिसाइड करते होंगे। तो कंज्यूमर के ऊपर होता है ना। हाँ, जॉब प्रोडक्शन पे जो कंज्यूमर बोलेगा उससे ज्यादा बनाना है। लेकिन फिर ये ऑर्डर आया, फिर ये आर्टिस्ट से कंसल्ट भी तो करता होगा ना, यार ये ऑर्डर है, बन सकता है नहीं बन सकता। कस्टमर लॉयल्टी और इंक्रीज इन मार्केट शेयर। कस्टमर लॉयल्टी एंड इंक्रीज इन मार्केट शेयर। 1 मिनट। हेलो, वालेकुम सलाम। ये बताता हूँ मत, ये तो मैं इसके बाद बताता हूँ। अगला देखो, इवेल्युएट वेदर आरआर शुड चेंज टू बैच प्रोडक्शन, यानी बैच प्रोडक्शन में जाना चाहिए या नहीं। दोनों के फायदे बताने हैं और दोनों के नुकसान बताने, और एंड में अच्छा मैं यहाँ पर है ना, देखो मीटिंग खत्म हो रही, टाइम कम है, मैं यहाँ पर है ना सिर्फ बुलेट्स बना रहा हूँ, अपने पास नोट करो, फिर आंसर डेवलप करते हैं। पहले बुलेट्स बनाना, बुलेट्स लिख लो अपने पास, खाली नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ ना, पहले सबसे पहला काम क्या है आपको, पहले आप डिफाइन करो बैच प्रोडक्शन है क्या। सही, डिफाइन बैच प्रोडक्शन। लेकिन एक बात याद बताओ कि यार अभी जॉब पे काम कर रहा है और इन्वेंट्री इतनी फंसी हुई है। क्या कर रहा है? जॉब पे काम कर रहा है तो इन्वेंट्री इतनी फंसी हुई है। जब बैच पे काम करेगा तो फिर इन्वेंट्री कितनी ज्यादा स्टॉक अप होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बड़ा मसला आ सकता है, लिक्विडिटी की क्राइसिस की बात यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन बैच पे जाओगे तो क्या हो सकता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लेकिन इकोनॉमी तो स्केल तो होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम ये बैच बनाना शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन क्या इतनी बड़ी मार्केट भी है कि हमारे ग्लास वेसेस इतने बिक जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, जब ये बैच पे जाएगा तो पहले एक आर्टिस्ट बाय हैंड बनाता होगा, तो उसको एक्सपेंस, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, यानी इसको मशीनरी बड़े स्केल की चाहिए होगी, यानी बड़े ओवन चाहिए होंगे, ज्यादा स्टोरेज स्पेस चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? स्टोरेज ज्यादा चाहिए होगी।
लेकिन जब इकोनॉमी ऑफ स्केल होगी तो ये प्राइसेस क्या ऑफर कर सकेगा, कम। तो इससे एडवांटेज है ना, इससे हमारी डिमांड, अगर डिमांड इलास्टिक हुई तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। और फिर एट द एंड आपको क्या करना है, इसमें कंक्लूजन देना है। बेटा इकोनॉमी ऑफ स्केल होगी, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी तो तू प्राइसेस कम ऑफर करेगा, प्राइसेस कम ऑफर करेगा और डिमांड अगर इलास्टिक नहीं है तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हाँ दूसरी बात, अगर बैच पे जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, इसमें करनी पड़ेगी मशीनरी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि बड़े स्केल पे आपको बनाने हैं ना, तो बड़ी मशीनरी चाहिए होगी, तो उसमें कैपिटल भी ज्यादा फंसेगा, इन्वेंट्री टाइप होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर इन्वेंट्री बहुत फंसी हुई है। बैच के अंदर बनाओगे तो इन्वेंट्री और ज्यादा आ जाएगी। हाँ कोई एक फॉल्ट आ गया, यानी कोई एक प्रोसेस के अंदर फॉल्ट आ गया तो पूरा बैच एक साथ जाया हो जाएगा। फायदे भी है ना कि आपके पास अल्लाह भला करे क्वांटिटी होगी, आप कस्टमर्स को लार्जर क्वांटिटीज में डिलीवर कर पाओगे। बल्क ऑर्डर्स, यानी फॉर एग्जांपल पीछे से रॉ मटेरियल बल्क में लोगे, ठीक है, तो उसमें, लेकिन बल्क में इसका बल्क वाला पॉइंट यहाँ पर बताऊं क्यों नहीं आता, क्योंकि इसको जो पीछे से ग्लास मिल रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, उसके लिए वो ये कोई पैसे पे नहीं कर रहे। हो सकता है कि अगर आप बैच में जाते हो और हमें पीछे से रॉ मटेरियल मिल रहा है, अगर वो रॉ मटेरियल की सप्लाई उस क्वांटिटी की है ही नहीं कि हम बैच बना सकें, तो फिर जाहिर सी बात है वैलिड पॉइंट है कि अगर हमारे पास पीछे से सप्लाई है ही नहीं इतने ग्लास की कि हम बैच में प्रोडक्शन कर सकें, तो बैच में जाने का फायदा नहीं है। तो उसको पता चले कि आप हाई स्केल पे बना रहे हो, आपको चार्ज करना, बिल्कुल बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा है। हाँ वन आइटम। अब इसमें ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ में नहीं आ रही, केस बता नहीं रहा। अब वन ऑफ आइटम बन रही होती है, अब ऐसा हो सकता है कि जॉब प्रोडक्शन ऐसी हो रही हो कि हर आर्टिस्ट, यानी जॉब प्रोडक्शन में ये बताऊं ये क्या कर रहा होगा कि हर आर्टिस्ट के पास ग्लास आता होगा, वो अपने हिसाब से डिजाइन बना के रख देता होगा। अब जब कस्टमर आएगा, जब बिकेगा, और हर वेस्ट दूसरे से अलग होता होगा, ठीक है, तो ये हो सकता है सब एक ही तरह का एक ही डिजाइन का बनता है। और एंड में फिर अपना अपना ओपिनियन दे दो कि करना चाहिए या जॉब में ज्यादा लगती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा उसमें लगेगी बैच में, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर कॉस्ट जॉब में ज्यादा है, बैच में बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते। तो यहाँ पर हमारा एक केस 1 खत्म होता है, इसको खत्म करते हैं। तकरीबन हमें केस कंप्लीट करना है 45 मिनट्स में। एक सेकंड, इसको स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को।